Hare Krishna. Thank you. Okay, thank you very much, all the devotees, for giving me an opportunity to speak again. And thank you for assembling. Um, New place, at least I'm coming to this spot for the first time. Last week also was here. Okay. Very good. Building is so they've decided that they need a stronger foundation. So we're all here in the foundation to make it strong for them. Okay. So I think a couple of more weeks we may move around a little bit till we find a better spot because of the space to get the permanent place. Definitely, we need the prayers of all the devotees because what to do? Things happen. The sudden departure of the gentleman who had given us the building, the space at that time. The gentleman passed away. It's also a reminder of how temporary life is. No, suddenly anything can happen. Um, and is age a bar anymore for death? Not at all, right? Earlier, we used to think if someone needs to pass away, we used to ask, "Oh, how old was that person?" Someone was very old, 80s, 90s, and all of that. But not anymore. It's just become so common that people, even in their 20s today, are dying. Suddenly they get a heart attack or something like that, isn't it? So life is so temporary. That is because of the influence of a very powerful yuga called as Satya Yuga, Kali Yuga. Right. So all of us are in Kali Yuga now. So what I'm going to do is, since I'm also a product of Kali Yuga, like everybody else, uh, we will take shelter of Srimad Bhagavatam and we will read from Srimad Bhagavatam because I'm also in Kali Yuga. And the only person who knows, who could predict Kali Yuga even before Kali Yuga arrived was Srila Vyasadeva. Okay. So, in fact, when Srila Prabhupada, during the final pastimes of Srila Prabhupada before his departure, he used to ask his disciples to read the 12th canto of Srimad Bhagavatam. And the 12th canto of Srimad Bhagavatam is where um, Srila Vyasadeva writes about Kali Yuga. Which yuga was Vyasadeva in? Dwapara. Right. So Vyasadeva was in Dwapara. Krishna appeared in which yuga? Dwapara, correct. So Krishna also appears in Dwapara Yuga. But actually, Krishna, certain scriptures talk about Krishna appearing in Kali Yuga, not in Dwapara Yuga. Okay. So, acha, okay. So today request devotees to be silent because we don't have mic today. So I will increase my volume. So, some scriptures, कहीं पे किन्हीं शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान द्वापर युग में आए थे और कहीं कहीं कहते हैं कि भगवान कलयुग में आए थे। तो इन दोनों में से सत्य क्या है? सत्य ये है कि दोनों युगों के बीच में एक संधि पीरियड होता है। संधि संधि को क्या बोलते हैं हिंदी में? इट्स लाइक अ गैप बिटवीन, हाँ, जैसे, हाँ, ओवरलैपिंग होता है, जैसे रेनबो है ना, रेनबो के जो कलर्स हैं, बिफोर वन कलर, ऐसा नहीं है कि आफ्टर वन कलर immediately second color starts. There is a overlapping and then the next color starts. Right? So this overlapping period is called the Sandhi period. So it was towards the end of Kali Yuga. Kali Yuga, Dwapar Yuga. द्वापर युग के अंत में और कली युग के बिगिनिंग में, दोनों के जो ओवरलैप टाइम थे, उस टाइम पे भगवान कृष्ण अवतारित हुए।
और भगवान के एक और अवतार थे उस टाइम पे, वो कौन थे? हाँ, श्रील व्यासदेव। व्यासदेव भी भगवान के ही अवतार है। हाँ, तो व्यासदेव का नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास। सो व्यास एक्चुअली नाम नहीं होता है। व्यास, व्यास का मतलब एक पोजीशन होता है। व्यास मतलब ही इज अ पर्सन हु डिवाइड्स सारे वेदों को, जिन्होंने डिवाइड किया, और जो डिवाइड कर पाते हैं उनको व्यास कहते हैं। तो संस्कृत में जो डिवाइड करते हैं उनको व्यास कहते हैं। तो व्यासदेव, लेकिन उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। तो उनका पूरा नाम होता है कृष्ण द्वैपायन व्यास। ठीक है। और व्यासदेव के पिताजी का नाम क्या है? पराशर मुनि। पराशर मुनि। अम, जो एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी देखते हैं ना आजकल, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या अम, इन्हीं का देन था। हमारे पराशर मुनि का ही देन था। पराशर मुनि और भृगु मुनि, ऐसे ऋषिगणों ने ज्योतिष विद्या का निर्माण किया था। तो एनीवे, व्यासदेव, he created, not created, but he divided the Vedas into four. और चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है। सारे वेदों में मूल तो एक ही है, अंत भी एक ही है, लेकिन डिटेल्स अलग अलग। ठीक है, डिटेल्स अलग अलग है। जैसे सारे पूजा के जो विधि हैं वो यजुर्वेद से आते हैं। जो संगीत है वो सामवेद से आते हैं, ऐसे। ठीक है। जो मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञों में जो मंत्र उच्चारण करते हैं, वो ऋग्वेद से आते हैं। ठीक है। और जो उपनिषद, सारे उपनिषद आते हैं, मूलतः सारे उपनिषद आते हैं अथर्ववेद से, लेकिन बाकी वेदों से भी आते हैं, लेकिन अथर्ववेद से आते हैं। लेकिन अ, अथर्ववेद, जो अ, कर्मकांड, हम लोग कर्मकांड कहते हैं, कर्मकांड आता है अथर्ववेद से। तो जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो ज्यादा अथर्ववेद को रेफर नहीं करते। अथर्ववेद कर्मकांड को, अ, कर्मकांड से कनेक्ट होता है। ठीक है। ओके। तो जो सारे वेद, अम, वेदों का जो व्यासदेव ने ऐसे विभाजन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं व्यासदेव को अ, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, संतृप्ति नहीं मिला था। तो अम, तो व्यासदेव ऐसे ही निराश बैठे थे एक टाइम पे। और कैसे, ऐसे कि ऐसे, अच्छा ये, ओके, अच्छा ये स्पीकर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है। एको हो रहा है ना? ऐसे बात करूं? एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली? डन। ओके, आई इंक्रीज माय वॉल्यूम। तो क्या कह रहा था? जैसे व्यासदेव ने सारे वेदों का विभाजन किया, उसके बाद भी व्यासदेव डिससैटिस्फाइड थे, खुश नहीं थे। तो व्यासदेव ऐसे ही दुखी बैठे थे। फिर व्यासदेव के गुरु महाराज आए। व्यासदेव के गुरु जी कौन है? कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि। सो नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने पूछा व्यासदेव से कि क्या हुआ? और व्यासदेव ने बोला कि अ, पता नहीं, सारे वेदों का विभाजन भी किया, उपनिषद भी बन गए, सारे पुराण भी बन गए, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कुछ तो लैकिंग है, कुछ तो शॉर्टेज है। तो नारद मुनि ने व्यासदेव से कहा कि यू हैव रिटन ऑल द वेदास, सारे वेदों का आपने विभाजन किया, उपनिषद बनाए, पुराण बनाए, लेकिन बहुत बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। कोई ये पुराण पढ़ेगा, कोई वो पुराण पढ़ेगा। कोई कहेगा कि भगवान शिव सर्वोत्तम है, कोई कहेगा
विष्णु सर्वोत्तम है, कोई और कहेगा कि देवी सर्वोत्तम है। तो जो पुराण जैसे एक एक पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वही भगवान है, वही सर्वोत्तम है। तो जैसे हमारे जो हिंदू समाज है, आप देख सकते हैं आज भी वही है ना। तो सभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इतना सारा कंफ्यूजन है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। तो नारद मुनि ने 5000 साल पहले यही बात व्यासदेव को कहा कि आपने तो बहुत निर्माण किया है, लेकिन इसके साथ आएगा कंफ्यूजन। तो अम, कोई डायरेक्ट फिलॉसफी आपने अभी तक नहीं लिया, कोई डायरेक्ट सिद्धांत आपने अभी तक नहीं लिया, तो आपको ऐसा एक सिद्धांत देना चाहिए जो सारे वेदों का एसेंस है। एसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, सार, हाँ, सारे वेदों का सार। ठीक है। तो अम, व्यासदेव ने उसके बाद आ, लिखा एक पुराण, महापुराण। कौन सा पुराण? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पुराण। अमल पुराण कहते हैं उसको, अमल पुराण, बिकॉज इट इज द एसेंस। सारे पुराणों का, सारे उपनिषद का सार है, एसेंस है। तो इस श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो, द लास्ट कैंटो, लास्ट कैंटो से सेकंड चैप्टर में व्यासदेव प्रेडिक्शन करते हैं कि कलयुग कैसे होगा। तो उससे हम लोग बहुत बहुत लंबा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्यासदेव सही थे कि नहीं। क्योंकि व्यासदेव से ज्यादा एक्सपीरियंस कलयुग का किसको है? हम ही को है ना, हम ही तो है यहाँ। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि व्यासदेव का प्रेडिक्शन कैसा है। ठीक है। हालांकि अभी कलयुग अपने संपूर्ण वेश में अभी नहीं आया। तो कलयुग इज अबाउट 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 ईयर्स। और अभी कितने साल हो गए? ओनली 5,000। और इसी में हम लोग थक गए हैं ना। थक गए, और लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। अभी नहीं आया। अभी इट इज ओनली द बिगिनिंग, इट इज ओनली द बिगिनिंग। हाँ, सो देयर इज, सो लिटिल बिट अभी भी है। वी आर स्टिल फॉलोइंग, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुलसी महारानी है, भगवान है, लोग अभी भी मंदिर जाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, राम मंदिर बन गए यहाँ पे अयोध्या में, लेकिन फिर भी दैट इज वाई संडे इवनिंग वे तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, उनका कॉन्वर्सेशन होता है। उन तो सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, ओ किंग, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, memory will all diminish day by day because of the powerful influence of age of Kali. तो क्या क्या reduce होगा? Religion, धर्म, और ट्रूथफुलनेस, सत्य, क्लेनलीनेस, शौच। तो लोग क्लेनलीनेस मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सहन शक्ति। हाँ, सहन शक्ति कम होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक में थोड़ा सा अगर ये वो हो गया, सारे मारो उसको, है ना। तो टॉलरेंस बहुत कम है अभी सारे लोगों में। और भी कम होता जाएगा, और भी कम होता जाएगा। सिर्फ हम लोगों के, आम लोगों के बीच में नहीं, देशों के बीच में भी आप देख सकते हैं इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं। रशिया, यूक्रेन, ईरान और इजराइल, ऐसे, हाँ, बहुत सारे। और रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, और भी बहुत सारे होंगे। और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, आयु, आयु भी कम होगी, वो भी हम देख सकते हैं, है ना। आयु भी कम हो रही है। और फिजिकल स्ट्रेंथ, जो शक्ति, शरीर की जो शक्ति है, वो भी कम होती जाएगी, है ना। अनइमेजिनेबल है। अभी शिल प्रभुपाद कहते हैं कि शिल प्रभुपाद कहते हैं कि व्यासदेव कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि जब आदमी
40 साल का हो जाएगा, he will internally feel like he is 90 years old, 100 years old. ऐसे ऐसा भी एक टाइम आएगा कि 40 साल में उनको ऐसा लगेगा कि अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं हम लोग। जैसे 90 इयर्स के हो गए कि 100 साल के हो गए, बॉडी इतना डिटोरिएट हो जाएगा। तो वो है कलयुग। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, 85 के हैं अभी, लेकिन फिजिकली मेरे से भी स्ट्रांग है। अभी भी है ना। तो जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं, कटहल, कटहल बोलते हैं ना। उसको मेरे पिताजी अभी भी हाथ से ही तोड़ते हैं ऐसे, एक शॉट, और मैं चाकू वाकू लेके कट करता हूँ। तो हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि बॉडी इज डिटोरिएटिंग, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन और भी कमजोर होंगे, उस और भी कमजोर, और भी कमजोर, ऐसे। सो दिस इज नेचुरल। एंड मेमोरी विल डिमिनिश डे बाय डे। मेमोरी, स्मरण शक्ति, वो भी कम होती जाएगी। इन कलयुगा, wealth alone will be considered the strength of a man's good birth, proper behavior, and fine qualities. इसका अर्थ क्या है कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा होगा, सभी उन्हीं को देखेंगे, कहेंगे कि जो पैसे वाले करेंगे, उन्हीं का बिहेवियर सत्य है, उन्हीं का बिहेवियर अच्छा है। ज्ञानियों को कोई नहीं देखेगा, सिर्फ पैसे वालों को देखेंगे। कलयुग यही है। ठीक है। लॉ एंड जस्टिस विल बी अप्लाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वंस पावर। जिसके पास शक्ति होगी, लॉ और जस्टिस उन्हीं का होगा। अभी है। हाँ। पुणे में हुआ था। एक आदमी क्या अपनी गाड़ी लेके दो दो लोगों के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया था। कौन सा गाड़ी था वो, स्कोडा की पता नहीं। हाँ। हाँ, पॉश है ना, पॉश या ऐसा कोई गाड़ी, एक्सपेंसिव, बहुत अमीर। और जज ने क्या बोला कि छोड़ो, होता है ऐसे, तो एक 300 वर्ड का ऐसे लिख दो बस। ही मर्डर्ड 2 पीपल, और उसके बाद द जज टोल्ड हिम राइट अ 300 वर्ड ऐसे, क्योंकि उनके पास पैसा है ना। तो पुणे के सारे जनता मिलके उन्होंने थोड़ा मोर्चा ये वो किया इसके लिए, इसीलिए द गवर्नमेंट टुक इट वेरी सीरियसली, वरना वो तो छूट जाता। वैसे भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, है ना। यहाँ से इंडिया से पैसे चुराते हैं, कहीं और जाते हैं, और हजारों करोड़, तो उनके पास पैसा है, तो दे विल बी हैप्पी। the law belongs to them, and this is only the beginning. कलयुग का सिर्फ स्टार्ट हुआ है अभी। Men and women will live together merely because of superficial attraction. और men and women, आदमी और औरत दोनों साथ में रहेंगे, बिना विवाह के, बिना विवाह के साथ में रहेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। केवल शरीर के आकर्षण, आकर्षण को देके दोनों साथ में रहेंगे, बिना विवाह के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हाँ, पहले हम लोग शौक होते थे, अभी तो आम बात हो गया है ना। छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं आजकल कि ये कौन है, गर्लफ्रेंड, ओ अच्छा, हम लोग ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। पहले तो हम लोग डांटते थे, कुछ करते थे, अभी तो अच्छा ठीक है, अभी क्या करेंगे। तो merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. सक्सेस इन बिजनेस विल डिपेंड ऑन डिसीट। मतलब बिजनेस में कौन सक्सेसफुल होगा, जो चीट करेगा, जो सबको धोखा देगा, वही असली बिजनेसमैन होगा। कलयुग। विजय मल्ल्या। अवार्ड भी मिलेगा। और ब्राह्मण की पहचान सिर्फ उनके उपवीत, उपवीत को क्या बोलते हैं, जनेऊ से होगा, उनके क्वालिटी से नहीं होगा, सिर्फ जनेऊ से होगा। कोई जो जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण, सो जनेऊ को देख के हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है वो ब्राह्मण है। तो पहले सिर्फ जनेऊ से पहचान नहीं होता था, उनके गुणों से होता था, उनके गुणों से होता था कि ब्राह्मण के गुण है कि नहीं। अभी गुण है नहीं है जो भी है, अगर जनेऊ है तो ब्राह्मण है। हमारे एक पॉलिटिशियन है जो कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहन के जाते थे, वो इलेक्शन के टाइम पे, पता है कौन है? हाँ, एक है। एक है।
ठीक है. A person's spiritual position will be ascertained merely according to external symbols, and that and on that same basis, people will change from one spiritual order to the next. So, जैसे spiritual लोग हैं, उनकी पहचान सिर्फ उनके कपड़ों से होगा कि उनका भी क्वालिटीज वगैरह गुण नहीं देखेंगे. सिर्फ उनके जो सैफरन कपड़े हैं उनको देख के हम लोग कहेंगे कि ये बड़े बहुत बड़े साधु हैं. हरे कृष्ण जी. A person's prosperity will be seriously questioned if he does not earn a good living. um, कैसे कहूँ हिंदी में? Yeah, no problem. A person's Hare Krishna, Hare Krishna. So person's prosperity, ठीक है, will be judged only based on how much money he is earning. Uh, जैसे अगर कोई बहुत सारे पैसे धन कमाता है, कलयुग में ऐसा होगा कि जो धन कमाता है वही सर्वोत्तम है, वही सज्जन है, और कोई सज्जन नहीं है. जिनके पास पैसा है वही सज्जन है. कोई है यहाँ पे पैसे वाले सज्जन? नहीं है. ठीक है. और and one who is very clever in juggling words will be considered a learned scholar. और ज्ञानी किसको कहेंगे? जो वर्ड जगलिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, जो बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं ना, उन्हीं को ज्ञानी समझा जाएगा कलयुग में. जो सीधे सीधे शास्त्रों को पढ़ के सीधे सीधे कहते हैं, कहते हैं उन विश्वास नहीं होता, और कहते हैं शायद ये ज्ञानी नहीं है, इनको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा. हाँ? लेकिन जो शब्दों को तोड़ मरोड़ के ऐसे प्रेजेंट करते हैं. अम, एक पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने भगवत गीता के ऊपर ये कमेंट्री लिखा था बहुत पहले. और उन्होंने लिखा था कि उनके कमेंट्री में कि कृष्ण कृष्ण नाम का कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी ऐसा पर्सनालिटी नहीं था, ना कोई अर्जुन था, ना कोई पांडव थे. कृष्ण सिर्फ हमारा मन है, और पांडव, पांच पांडव हमारे पांच इंद्रिय हैं. तो ऐसे शब्दों को तोड़ मरोड़ के, पता है किसने लिखा है ऐसे? गांधी जी. हाँ, गांधी जी ने अपने भगवत गीता की कमेंट्री में ऐसा लिखा था कि कोई कृष्ण नहीं था, कोई पांडव नहीं थे. और उनका भगवत गीता इतना पॉपुलर हो गया उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग उनके भगवत गीता को पढ़ के कंफ्यूज हो गए थे. और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे डाउट्स हैं उनके मन में और क्वेश्चन करते हैं. तो ये है कलयुग, और उनको हम लोग महात्मा भी कहते हैं. The person will be judged. So, okay. A person will be judged unholy if he does not have money. Unholy, unholy को क्या वो कहते हैं? अशुभ. जैसे अशुभ, जो जिनके पास धन नहीं होगा, उनको अशुभ माना जाएगा. कि अरे ये तो अछूत है, अशुभ है. जिनके पास धन नहीं होगा कलयुग में, उनको अछूत, या फिर असौच, या फिर क्या कहते हैं, और अशुभ माना जाएगा. Marriage will be arranged simply by verbal agreement, and a person will think he is fit to appear in public if he merely takes a bath. So, marriage will be arranged simply by verbal agreement. जो विवाह के टाइम पे हम लोग अग्नि की मंत्रोच्चारण होता है, और अग्नि के हम लोग सप्तपति कहते हैं ना, तो 7 फेरे लगाते हैं हम.
तो वो सब नहीं होगा होगा कलयुग में, सिर्फ ऑन वर्बल एग्रीमेंट। आज से मैं पति तुम पत्नी, डन, बस। हाँ, आसान है ना, पैसे भी बच जाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी इन कलयुग इन द फ्यूचर। चर्च में तो वही हो रहा है, लेकिन कोर्ट में भी वही हो रहा है ना। कोर्ट में जाएंगे, साइन करेंगे, कोर्ट मैरिज है, ना कोई मंत्र होगा ना ये होगा। कोर्ट मैरिज तो वैसे इट इज लीगल, लीगल रीजंस के लिए करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो एक्चुअल विवाह होता है ना। कि, बहुत सारे हैं। ब्यूटी विल बी थॉट टू डिपेंड ओनली ऑन हेयर स्टाइल, व्यासदेव लिख रहे हैं। तो व्यासदेव लिख रहे हैं कि ब्यूटी विल बी बेस्ड सिंपली ऑन हेयर स्टाइल, कि जिनके बाल कैसे हैं, ब्यूटी उन्हीं का है। अति सुंदर ऐसे। तो जिनके बाल ऐसे सफेद हो गए हैं, उनका कोई चांस नहीं है कलयुग में। फिलिंग द बेली विल बी द गोल ऑफ लाइफ। फिलिंग द बेली विल बी द गोल ऑफ लाइफ। सिर्फ पेट भरना ही सारे लोगों का गोल होगा। गोल को क्या बोलते हैं? हाँ, लक्ष्य होगा। और कोई लक्ष्य ही नहीं होगा कलयुग में, सिर्फ पेट भरना बस। एंड वन हु इज ऑडेशियस विल बी एक्सेप्टेड एज ट्रूथफुल। जो जोर से बोलेगा, जो बहुत सारे एग्रेशन, गुस्से से बोलेगा, उसी को सत्यवान मानेंगे, कि वही सत्य बोल रहा है। क्यों सत्य बोल रहा है? क्योंकि वो जोर से बोल रहा है। तभी हम लोग माइक भी यूज करते हैं यहाँ पे, जोर से बोलेंगे। As the earth thus becomes crowded with corrupt population, सारे जनता भी corrupt हो जाएंगे। Whoever among any of the social classes shows himself to be the strongest will gain political power. और जो सारे आम लोगों से जो शक्तिशाली है, चाहे वो जितना भी करप्ट हो, वही पॉलिटिशियन बनेगा, वही राजा बनेगा, वही किंग बनेगा। They will lose their wives and properties to such avaricious, merciless rulers. एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो राजा हैं, राजा मतलब पॉलिटिशियंस, लोगों से उनके प्रॉपर्टीज, और व्यासदेव कहते हैं कि उनकी पत्नियों को भी अ, छीन लेंगे, हरण करके ले जाएंगे। और अ, आदमियों में उतनी क्षमता नहीं होगी कि अपने प्रॉपर्टी या अपने पत्नी को भी बचा सके। इतने कमजोर हो जाएंगे लोग, आम जनता। एंड ऐसे राजा, ऑर्डिनरी thieves, they will behave like आम चोरों की तरह बिहेव करेंगे। Harassed by famine and excessive taxes, people will resort to eating leaves, roots, flesh, wild honey, fruits, flowers and seeds. तो टैक्स इतना बढ़ जाएगा, व्यासदेव कहते हैं उस टाइम पे भी टैक्स था। वैसे युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे भी टैक्स था, लेकिन एक प्रोसेस था उनके कलेक्ट करने का। लेकिन फैमिन एंड फैमिन को क्या बोलते हैं? जब बाढ़, हाँ, सूखा, अकाल, अकाल इतना होगा, और गवर्नमेंट इतना कलेक्ट करेंगे कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हेरेस्ड हो जाएंगे, कि वो सिर्फ क्या खाएंगे? पत्ते खाएंगे, जड़ खाएंगे, रूट्स, पत्ते, जड़, और मांस खाएंगे, फ्लेश, मांस खाएंगे। अम, और फल, अगर कुछ फल है तो फल खाएंगे, फूल भी खाएंगे, फ्लावर्स, और सीड्स, सीड्स जैसे बीज, बीज खाएंगे। The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, रेन एंड स्नो। और सारे लोग तड़पेंगे, बहुत सारा ठंड होगा, बहुत आंधियां रहेंगी, बहुत हीट भी होगा, बहुत बारिश होगा, और स्नो, स्नो को क्या बोलते हैं? बर्फ, बर्फ भी पड़ेगा। And they will further be tormented by quarrels, hunger,
थर्स्ट, डिजीज एंड सिवियर एंजाइटी। और प्यास से तड़पेंगे, भूख से तड़पेंगे, और बहुत सारा क्वारल होगा। क्वारल मतलब झगड़े, लड़ाई, लड़ाई होगा, और बीमारियां होंगी, बहुत सारी बीमारियां। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ The maximum duration of life for a human being in Kali Yuga will be 50 years, और मैक्सिमम लाइफ होगा 50 साल। हम्म? हाँ, न्यूज में होगा कि 50 साल, इतने जिंदा हो गए। वेरी गुड। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ, ऐसे पूछेंगे सभी। 50 साल के आदमी। By the time the age of Kali ends, कलियुग के अंत में, the bodies of all creatures will be greatly reduced in size. साइज में सभी छोटे होते जाएंगे, और कलयुग में, कलयुग के अंत तक बहुत ही छोटे हो जाएंगे, हाइट बहुत छोटे, छोटे छोटे। The path of the Vedas will be completely forgotten. सारे वेदों को सभी भूल जाएंगे, तो ऐसा कुछ वेद पुराण सभी भूल जाएंगे। और एक ही धर्म रहेगा उस टाइम पे, एथीज्म। एथीज्म को क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो नास्तिक रहेंगे, हाँ, जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक था, सिर्फ वही एक धर्म माना जाएगा। और सारे राजा चोर होंगे, किंग्स विल बी मोस्टली थीव्स। और अ, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा? स्टीलिंग, चोरी, झूठ बोलना, लाइंग, एंड नीडलेस वायलेंस, बिना कारण झगड़ा करना, लड़ाई करना। तुम लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अभी भी हो रहा है ऐसी चीजें। ठीक है। काउज विल बी लाइक गोट्स, गाय बकरी के जैसे साइज के बन जाएंगे, छोटे छोटे से। काउज विल बी लाइक गोट्स, विल बी नो डिफरेंट। जो मंदिर और मठ होंगे, वो आम घरों की तरह ही होंगे, वहां पे कोई साधु नहीं रहेंगे, आम घर घर की तरह ही होंगे। और फैमिली विल बी नो मोर देन इमीडिएट फैमिली। मतलब जैसे पति पत्नी और बच्चे हैं, सिर्फ वही एक फैमिली है, और बाकी सबको भूल जाएंगे। वैसे अभी भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, कि धीरे धीरे हम लोग, डिस्टेंस हो रहा है। फादर इन लॉ कहीं और है, मदर इन लॉ कहीं और है, पेरेंट्स कहीं और है, देश छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो अगर उनसे पूछेंगे कि फैमिली में कौन है, सिर्फ हम ही हैं, तो अब दिखाई दे रहा है कि फैमिली में थोड़ा सा ऐसा ऐसा होगा। मोस्ट प्लांट्स एंड हर्ब्स विल बी टाइनी, सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे होंगे। एंड द ट्रीज विल अपीयर लाइक ड्वार्फ सेमी ट्रीज। क्या बॉन्जाई बोलते हैं ना, बॉन्जाई ऐसे छोटे से। तो सारे पेड़ पौधे ऐसे ही होंगे, बड़े बड़े पेड़, बैनियन, सारे छोटे छोटे से ऐसे। क्लाउड्स विल बी फिल्ड विथ लाइटनिंग, होम्स विल बी डिवॉइड ऑफ पाइटी, ना कोई पूजा होगा, ना यज्ञ होंगे किसी घर में। एंड ह्यूमन बीइंग्स विल हैव बिकम लाइक एसेस, मतलब सारे इंसान थे बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यासदेव कह रहे हैं। कि हाँ, तो ये है कलयुग। और शिल प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि कलयुग में ऐसा होगा कि आम के पेड़ होंगे, और उस आम के पेड़ में आम भी होगा, लेकिन जैसे आप आम को तोड़ेंगे, सिर्फ उसके अंदर आम की गुठली, सिर्फ गुठली होगी, और उसके ऊपर जो एक्चुअल आम है जो हम लोग खाते हैं, वो नहीं रहेगा, सिर्फ गुठली रहेगा। हाँ, तो ये है कलयुग। किस किस को पसंद है कलयुग? अच्छा, इतना एडवर्टाइज किया मैंने, पसंद नहीं है? ठीक है, तो कलयुग के अंत में भगवान आएंगे। तो और कौन है भगवान? हाँ, कल की भगवान, कल की भगवान आएंगे। और कल की भगवान, उनका भी प्रेडिक्शन है, लॉर्ड कल्कि विल अपीयर इन द होम ऑफ अ मोस्ट एमिनेंट ब्राह्मण। तो उस टाइम पे एक ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण दंपति,
और उत्तम ब्राह्मण होंगे वो, बहुत ब्राह्मणों के गुण भी रहेंगे उनमें। तो उनके घर में भगवान कल की जन्म लेंगे, और ये होगा अ, शाम्भला विलेज। शाम्भला एक गांव है, और वो गांव होगा, हाँ, हाँ, संभल। तो यहाँ पे संस्कृत में शाम्भला लिखा है, शायद अभी नाम थोड़ा सा। और वो कहाँ पे है? हाँ, उत्तर प्रदेश है। तो वैसे कुछ जगहों पे कहा है कि बिहार भी है, दोनों क्या बॉर्डर में? हाँ, हाँ। अच्छा, तो अभी यूपी के अंदर आते हो? अच्छा, लेकिन बॉर्डर में है क्या बिहार? अच्छा, 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 ठीक है, ओके। तो ऐसे संस्कृत में शंभाला गांव लिखा है, तो अभी क्या कहते हैं उसको? संभल, संभल कहते हैं। तो वहां पे भगवान प्रकट होंगे, भगवान कल्कि। लॉर्ड कल्कि, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विल माउंट हिज स्विफ्ट हॉर्स, और उनके पास एक घोड़ा होगा, घोड़े का नाम होगा देवदत्त, देवदत्त घोड़ा। एंड ही विल हैव अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। ही विल ट्रैवल द अर्थ एग्जिबिटिंग द एट मिस्टिक ऑपुलेंसेस। सारी सिद्धि का प्रदर्शन करेंगे भगवान। एंड उनका एक ही काम होगा, भगवान कल की प्रचार नहीं करेंगे, हरि नाम का प्रचार नहीं करेंगे। भगवान कल की सिर्फ एक ही कार्य के लिए अवतरित होंगे होंगे, और वो है दुष्टों का विनाश, बस। ना किसी से बात करेंगे, ना कोई प्रीचिंग होगा, ना ना अर्जुन होंगे, और कोई नहीं होगा, ना भगवत गीता होगा। इट इज ओनली दुष्टों का सर्वनाश। कल के, हाँ, मंदिर, हाँ, 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 करेक्ट। सो मंदिर है, अभी भी मंदिर है। लेकिन कलयुग ऐसा है कि कुछ लोग भी आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ कल की अवतार। ऐसे भी लोग हैं, सुना होगा। तो सावधान रहें, बहुत सारे लोग रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे प्रिडिक्शन है कि भी नहीं आएंगे भगवान। अब भगवान आएंगे कलयुग के एंड में। एंड तो कलयुग के एंड में क्या होगा, जैसे भगवान आएंगे और सारे पापियों का नाश करेंगे, उसके बाद साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट साइकिल होगा सत्य युग। दोबारा सत्य युग आएगा। तो ही विल एस्टैब्लिश धर्म, फिर भगवान के चले जाएंगे। उसके बाद दोबारा मत्स्य अवतार होगा, अम, और कूर्मा अवतार होगा। ऐसे द साइकिल विल स्टार्ट अगेन। हाँ, आयु बढ़ेगा, बिकॉज फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्या हो गया? ओके। सो सत्य युग में, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव न्यू पीपल, वही लोग नहीं रहेंगे। कलयुग के लोग नहीं रहेंगे सत्युग में, क्योंकि सारे मर चुके होंगे ना। तो बिकॉज ऑफ उनका लाइफ भी इतना वीक होगा, इतना फ्रेजाइल होगा कि लोग मर जाएंगे वैसे भी। और उसके बाद स्टार्ट होगा सत्ययुग। और सत्ययुग में कौन आएंगे? हम सभी आएंगे वापस। सो वी हैव टू एस्टैब्लिश धर्म। तो धर्म को रीएस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे भक्त आएंगे, बहुत सारे योगी आएंगे, और दोबारा सतयुग स्टार्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कलयुग अभी भी बहुत है। और अगर हमने हमारी जो भक्ति प्रैक्टिस नहीं किया, और हम लोग जैसे अ, योग प्राप्ति से पहले ही अगर हम लोग हमारे शरीर को त्याग दिए, तो दोबारा हमारा जन्म होगा। जन्म होगा, और कलयुग के बहुत ही भयंकर कलयुग में हम लोग दोबारा से जन्म लेंगे। किसी को इंटरेस्ट है दोबारा भीकर कलयुग में? अभी थक गए ना हम लोग। तो इस कलयुग। लेकिन while टॉकिंग अबाउट दिस, परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो सैड कि ऑल द बैड क्वालिटीज, सारे जो बैड क्वालिटीज हैं, अ, वो सिर्फ कलयुग में है। तो
this is really unfortunate that everybody who is born in Kali Yuga, so it is so unfortunate. So Shukadev Goswami कहते हैं कि actually everything is bad in Kali Yuga, but Kali Yuga has one very great guna. कलेर दोष निधे राजन. So Kali दोष निधि है. दोष निधि means दोष का ट्रेजर है. इट इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ सिर्फ दोष ही दोष है कलयुग में. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुणा. लेकिन एक महान गुण है. कौन सा है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. ये सुखदेव गोस्वामी के वर्ड्स हैं. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग दोष का निधि है, लेकिन एक महान गुण है. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य. जो भगवान भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं. कीर्तनादेव कृष्णस्य. और किसके साथ? मुक्त संग परम रजे. तो मुक्त जो जो भक्त है मुक्त संगी. मुक्त संगी मतलब जो मुक्ति मुक्ति के पथ पे हैं, उनके संगत में जो हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, दे विल ऑलवेज बी सेफ. उनकी सुरक्षा हमेशा रहेगी, कलयुग में भी, घोर कलयुग में भी. ठीक है. तो मुक्त संग परम ब्रजे. और कंग्रेचुलेशंस, ऑल ऑफ अस आर सेफ. ठीक है. ऑल ऑफ अस आर सेफ. बट वी हैव टू एंश्योर दैट इसी जन्म में वी हैव टू फिनिश आवर बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम एंड गो बैक टू वैकुंठा, बिकॉज वी डोंट वांट टू कम बैक टू दिस प्लेस. दिस इज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते थे कि दिस दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन. जो सज्जन है, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर देम. ये दुनिया उनके लिए नहीं है. जो एक्चुअल सज्जन लोग हैं, uh, उन्हें वापस चले जाना चाहिए वैकुंठ के लिए. बिकॉज पॉलिटिशियंस हो या हमारे जो रक्षक हैं, पुलिस हैं, सभी करप्ट होते जाएंगे एज टाइम प्रोग्रेसेस. अभी तो थोड़ा हम लोग देख सकते हैं आर्मी वाले कुछ अच्छे होंगे, या पुलिस वाले भी एक दो अच्छे होंगे यहाँ पे वहाँ पे. पॉलिटिशियंस भी हम लोग देख रहे हैं कि एक दो यहाँ पे वहाँ ठीक होंगे. लेकिन जैसे कलयुग बढ़ेगा, आप देखेंगे आगे जाके 50 साल में, 100 साल में और भी भीकर होता जाएगा. टैक्स टैक्स सभी भर रहे हैं यहाँ पे. जो जो काम कर रहे हैं सभी टैक्स भरेंगे ना. तो खाने पे भी टैक्स है, पीने पे भी टैक्स है, कुछ ना करो उसके लिए भी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है. हाँ, 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 जीएसटी. सो अब जो भी करो सबके ऊपर टैक्स है. सो दिस हैरेसमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज. सो व्यासदेव का प्रेडिक्शन करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है ना. तो व्यासदेव कहते हैं कि मेन विल ग्रो लॉन्ग हेयर. मेन विल ग्रो लॉन्ग हेयर. हाँ, हाँ. तो हम लोग देखेंगे सी, मेन विल ग्रो वेरी लॉन्ग हेयर. एंड एक और एक और प्रेडिक्शन है कि मर्द और औरत में वो अंतर भूल जाएंगे, कि डिफरेंस भूल जाएंगे. दे विल नॉट नो हु इज अ मैन एंड हु इज अ वुमन. वो भी हो रहा है कहीं कहीं जगह. हम लोग देखते हैं ना ऐसे भी लोग. हाँ, हाँ. तो हाँ, 27 में इट्स लाइक दैट. अच्छा. I don't know. ओके. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि 27th मेन में ऐसा होता है, तो संडे इवनिंग इसके बाद हम लोग सभी जाएंगे वहां पे, तो देखेंगे कौन कौन है वहां पे. हाँ? तो तो वो भी होगा, कंफ्यूजन होगा. तो ये है कलयुग. लेकिन कलयुग में देर इज वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ कलयुग. बट कलयुग हैज दिस ग्रेट बेनिफिट. किसी और युग में ऐसा नहीं है. हमने पढ़ा है कि ध्रुव महाराज इतने कठोर तपस्या किया उन्होंने. और विश्वामित्र का तपस्या आपने पढ़ा है. विश्वामित्र 10,000 years ऑफ मेडिटेशन, फिर भी भगवान नहीं मिले उनको. 10,000 years. हमसे 5 मिनट का जप नहीं हो पाता, और विश्वामित्र बैठ गए 10,000 years. है ना. तो कलयुग में वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट. कलयुग इज वेरी सिंपल. वी ऑल नीड टू ओनली चैंट द महामंत्र. एंड महामंत्र इज हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
अरे सो दिस इज कलयुग। और इस कलयुग में एक एक छोटा सा एक पीरियड है, 10,000 years। 10,000 years का एक टाइम गैप है। और इस 10,000 years विच स्टार्टेड 500 साल पहले, 500 साल पहले 1000 years का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है। और कौन आए थे 500 साल पहले? श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान के अवतार। और भगवान ने ये महामंत्र उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज। और इस गोल्डन एज में आप देखेंगे कि बहुत ही सरलता से बहुत सारे लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे, बहुत ही सरलता से। हम लोग थोड़ा सा प्रचार करेंगे और वो लोग कहेंगे ठीक है, हम लोग भी चैंट करेंगे। जैसे ऐसे एक शेड है और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और भक्त बन जाएंगे बहुत ही सरलता से। सो ये होगा सिर्फ ये 10,000 ईयर के गैप में। और हम लोग सोचेंगे कि अच्छा 10,000 ईयर्स है तो हम लोग 3-4 जन्म ले सकते हैं और भी आराम से, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पर्टिकुलरली इट इज डिफिकल्ट फॉर डिवोटीज। पता है क्यों? हम लोग अभी जप करेंगे, थोड़ा सा गौ माता का सेवा करेंगे, कहीं एक दो धाम जाएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। लेकिन भगवत गीता में इनको कहते हैं योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट जो अपना योग समाधि तक नहीं ले पाते, ले जा पाते, वो हाफ, थोड़ा सा हाफ डिवोटीज, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा टीवी भी देखते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी है, थोड़ा सा संडे को भक्ति भी है, कि हाफ वो ऐसे जो भक्ति है, भक्ति करते हैं, उनको योग भ्रष्ट कहते हैं, जो अपना योग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसे जो डिवोटीज हैं, भगवान अर्जुन पूछते हैं कि भगवान इन लोगों का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं? हाँ, तो द लॉर्ड सेज दैट दे विल टेक बर्थ वंस अगेन, दे विल टेक बर्थ इन श्रुति नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते। श्रुति नाम श्रीमताम, श्रुति नाम मतलब जो somebody who's a devotee, they will take birth in their family, जो भक्तों के घर में जन्म लेंगे। या फिर श्रीमताम गेहे, श्रीमताम जो ऐश्वर्य ऐश्वर्यपूर्ण है, उनके घर में भी अ, जन्म लेंगे। लेकिन उससे पहले सारे भक्त जाएंगे हेवनली प्लैनेट्स, इंद्रदेव। और वहां पे तो मजे ही मजे हैं। हाँ, तो हम लोग सभी भगवान को भूल जाएंगे वहां पे। और उनका टाइम स्पैन अलग है। इफ यू गो टू हेवन, उनका टाइम स्पैन एक कंप्लीटली डिफरेंट है। और इफ यू स्पेंड वन लाइफ टाइम, यू नो द एनीबडी नोस कि जो देवी देवता हैं, उनका टाइम स्पैन क्या है? टाइम स्पैन अभी हो रहा है ना, जो दक्षिणायन अभी स्टार्ट हुआ है, उत्तरायण दक्षिणायन, जो अभी एकादशी हुआ था, शयनी एकादशी, जो पिछला एकादशी हुआ था, उसको शयनी एकादशी कहते हैं। तो दक्षिणायन स्टार्ट होता है। हमारे एक वर्ष में उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, सो एक वर्ष को दो में स्प्लिट करते हैं, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। तो ये उत्तरायण जो देवी देवता हैं स्वर्ग में, हमारा 6 महीना है और उनका 12 आवर्स होता है, उनका 12 आवर्स। और हमारा जो एक वर्ष है, उनका 1 डे, डे एंड नाइट होता है, 24 आवर्स। जैसे हमारा 24 आवर्स है, हमारा एक वर्ष, उनका 24 आवर्स। तो इसीलिए उनका लाइफ स्पैन बहुत ही लंबा होता है। और हम लोग अगर वहां पे जाएंगे, हमारा लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसे हम वहां पे हमारा लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे और दोबारा यहाँ पे आएंगे, तब तक तो ये 10,000 ईयर्स का गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका होगा। So we would have missed the ticket. So it is very important that you don't miss the ticket. And इसी जन्म में take Harinam very seriously. Don't waste time, because we are in a very difficult time. And anybody who is intelligent will take it very seriously. बहुत ही seriously लें हरिनाम स्मरण। और बहुत ही आसान है। हम लोग यहाँ पे कोई है जो चैंटिंग नहीं कर रहा है हरिनाम? सभी कर रहे हैं? ओके, वेरी गुड।
So you must chant every day. एंड भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि हाउ मच यू हैव टू चैंट, कितना चैंट करना चाहिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? हाँ, 16 राउंड, 64 राउंड्स, ऑलवेज। तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज यू हैव टू ऑलवेज चैंट। सो जो नियम के अनुसार जो जपमाला में हम लोग चैंट करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन अ, आप जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एट ऑल टाइम्स रिमेंबर कृष्णा, at all times, 24 hours. So if you remember Krishna while you're awake, the whole day, if you think of Krishna while you're doing work, all of that, think of Krishna. छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हो सके तो आपके लैपटॉप के, आई थिंक प्रभु बैटरी में बी गोइंग डाउन, अगर आपके लैपटॉप के स्क्रीन में, स्क्रीन सेवर में भगवान का फोटो डालें, या फिर एक छोटा सा फोटो आपके ऑफिस के टेबल में रखें, या आपके फोन पे लोग कुत्ता बिल्ली सब फोटो डालते हैं, वो सब निकाल के भगवान का एक फोटो डाल दीजिए, ताकि आप जब फोटो देखेंगे तो आपको भगवान का मतलब स्मरण रहेगा, ध्यान रहेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी हैव टू डू। So this brings us to the end of Kali Yuga. Okay. So Kali Yuga is ending here. So I'm going to end my class here also. That's it, right? 6 o'clock right now. Should I? Okay. So वी आर प्लानिंग, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके वी वांट टू इंट्रोड्यूस आवर गोस्वामीज। गोस्वामीज का फोटो है, हाँ, वहां पे एंड में छठ गोस्वामी कहते हैं, हमारे 6 गोस्वामी। तो हम लोग एक एक गोस्वामी के बारे में हर एक क्लास में अभी, आई एम नॉट श्योर कैसे प्लान करेंगे, इफ इट्स गोइंग टू हैपन एवरी वीक या इन इन गैप्स, बट देन एक एक गोस्वामी के बारे में हम लोग आपको उनकी कथाएं बताएंगे, उनके पास टाइम्स बताएंगे, और उसके बाद जाएंगे हमारे पंचतत्व, इंट्रोड्यूस करेंगे पंचतत्व को, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सो पंचतत्व इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा कि कौन है ये 6 गोस्वामी और पंचतत्व क्या है। तो इनके बारे में हम लोग we will start talking about all of that, ठीक है, हर एक क्लास में। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन हियर। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? वही हाँ प्रभु जी। जब कलयुग जब समाप्त होगा हाँ। तो शरीर तो समाप्त हो जाएगा, आत्मा तो वही आएगी। हम्म। तो आत्मा वो ट्रांसफर होंगी, अगली दुनिया में पहले आएगा मतलब कि कलयुग तो एक अच्छा युग है, कलयुग में बहुत, और हमारे पाप कर्म कैसे, हमारा जो करना है, जो पाप करना है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हम्म। तो कलयुग वाला जो पाप कर्म होगा कलयुग में कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। सो कर्मा इज नेवर डिस्ट्रॉयड। जो हम लोग अच्छा कर्मा है या बुरे जो कर्म है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वी विल हैव टू स्पेंड इट, जैसे करेंसी है। अगर मेरे पॉकेट में 500 है तो करेंसी है, यू विल हैव टू स्पेंड इट, तो आपको वो स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो जैसे कोई बीमारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किसी बुरे कर्म की वजह से आई एम डीलिंग विद इट राइट नाउ। या फिर अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल गया, पैसे मिल गए, अच्छा कोई जॉब मिल गया, यू नो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ गुड कर्म। तो रिटर्न्स हमेशा ही मिलेंगे, गारंटीड, देयर इज नो एस्केप। सो दोज हु आर इन कलयुगा, कलयुग के अंत में वो लोग सतयुग में नहीं आएंगे। तो भगवान श्रीमद् भागवतम सेज दैट व्हेन द लॉर्ड इनहेल्स, जैसे भगवान इनहेल को क्या बोलते हैं, सांस लेते हैं ना, जो इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उसके टाइम पे सारे जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं, और जब वो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस टाइम पे सारे जीव बाहर आते हैं। तो भगवान, हम तो हमारे, जब हम लोग भी सांस लेते हैं तो बहुत सारे जीव अंदर जाते हैं, बहुत सारे जीव बाहर आते हैं, वो भी है, लेकिन वी कैन नॉट कंट्रोल इट। लेकिन भगवान कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से जीव बाहर आएंगे, कौन कौन से जीव अंदर आएंगे। तो जो कलयुग के जीव हैं वो अंदर रहेंगे, और सतयुग के जो जीव हैं वो बाहर रहेंगे। जो अच्छे कर्म जिनके हैं
वो सतयुग में आएंगे, देयर गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम्स, मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी उनको। एंड कलयुग के जीव जीव दोबारा आएंगे कलयुग में उस टाइम पे। लेकिन उससे पहले भी आ सकते हैं, जैसे किसी असुर के रूप में आ सकते हैं, जैसे दुर्योधन। दुर्योधन कली के अवतार थे, जैसे कलियुग, कलियुग के अवतार थे दुर्योधन। सो ऐसे भी किसी अन्य युग में भी असुर बन के आ सकते हैं, कलयुग के लोग ऐसे ही हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। इसीलिए जो सज्जन व्यक्ति हैं, वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा और वैकुंठ, दैट इज द ओनली गोल। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्लास अभी एंड करेंगे, और वी विल एंड विथ अ गुड नोट। वी स्पोक अबाउट लॉट ऑफ क्वालिटीज ऑफ कलयुग। So once again, I request all the devotees, अपने हृदय से, from the bottom of your heart, praying to Krishna for his mercy, that, my dear Lord Krishna, please accept us at your lotus feet. So with a deep prayer, heartfelt prayer to the lotus feet of Krishna, let us all chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।